السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ للہ۔ قرآن پاک میں والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ انتہا ہوتی ہے کہ بندہ جب کسی کو آخری درجے کا اعتماد دلانا چاہتا ہے، اعتبار دلانا چاہتا ہے، آخری درجے کا اعتماد دلانا چاہتا ہے، اعتبار دلانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ پاک جل شانہ یا وہ شخص قسم اٹھاتا ہے۔ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی میرے اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اسی طرح رمضان کی آخری 10 راتیں، رمضان کی آخری 10 راتیں، وہ اس کی فضیلت، اس کا کمال، اس کی برکات حیرت انگیز ہے۔ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، رمضان کی آخری 10 راتیں۔ خوش قسمت ہے جس نے رمضان کی آخری 10 راتیں اللہ کے حوالے کر دی ہیں کہ مولا نہ بازاروں میں جاؤں، نہ شاپنگ کے نام پہ ذاتیں ضائع کروں، نہ زندگی کے اوقات کو بے ترتیب بناؤں، نہ میرا کچھ وقت، نہ سرمایہ، نہ ایمان اعمال کی زندگی، میں نے اپنے آپ کو، اپنی 10 راتیں تیرے حوالے کر دی ہیں۔ رمضان کی آخری 10 راتیں، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، اللہ کے ہاں ان راتوں کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں ان راتوں کا کمال ہے، اور اللہ کے ہاں ان راتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، عزت ہے، فضیلت ہے، اور ان راتوں میں اس کریم کا خاص کرم اور فضل ہے۔ رمضان المبارک کی جو آخری 10 راتیں ہیں، آخری 10 راتیں، جتنے بھی اولیاء آپ کو زندگی میں ملے ہیں یا نظر آئیں گے یا جن کی تاریخ اوراق میں ہے یا نہیں ہے، کروڑوں اولیاء آئے جو آج تک کتاب میں ان کے تذکرے، زبانوں میں ان کے تذکرے نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کے تذکرے بہت ہیں۔ ان میں ولایت کی شمع جلانے میں آخری 10 راتوں کا بڑا حصہ ہے، بہت زیادہ حصہ ہے، بہت زیادہ حصہ ہے۔ ولایت کی شمع جلانے کے لیے، ولایت کی روشنی پھیلانے کے لیے، ولایت کا نور جگمگائے، آخری 10 راتوں کا بہت بڑا حصہ ہے، اور آخری 10 راتوں کی بہت زیادہ قیمت ہے، اور آخری 10 راتوں کی بہت زیادہ اہمیت اس شخص نے جس نے ان راتوں کی قدر کی۔ اور ان آخری 10 راتوں سے مراد کوئی طاق راتیں نہیں، طاق راتیں نہیں، آخری 10 راتیں، ان کی قدردانی، ان کی قیمت۔ اچھا، میری ایک عجیب بات سننے میں آئی ہے، جن حضرات کا جنات سے بہت زیادہ تعلق ہے، میں آپ کو جنات کی زندگی میں رمضان کا کچھ معمول بتاتا ہوں۔ ایک تو جنات کے ہاں رمضان کی بہت زیادہ اہمیت، استقبال، اور رمضان کی پہلے سے تیاری، جن حضرات کا جنات سے تعلق ہے ان سے سننے میں یہ بات آئی ہے۔ دوسری چیز جو رمضان ہے اس میں ختم قرآن بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، اور جنات حفاظ بہت ہیں، بہت زیادہ، اور رمضان کی آخری طاق راتوں کو تو اخیر ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹھائیاں بہت بنتی ہیں، بہت بنتی ہیں، بہت بنتی ہیں، کہاں جاتی ہیں؟ عمومی مزاج مٹھائیوں کا ختم ہو کے نمکین چیزوں کی طرف لوٹ آیا ہے۔ پہلے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے، لڈو بنتے تھے، جلیبیاں بنتی تھیں، رشتہ دار برادریاں آتی تھیں، 8 دن، 2 ہفتے وہ آ کے شادی والے گھر میں رہتے تھے۔ 8 دن تو مجھے یاد ہے، ہمارے ایک بابا جی تھے ولی محمد، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملازم تھے، تو وہ ریڑھی پہ مجھے وہ بٹھاتے تھے تو میں پھر جھوٹے کھاتا تھا ان کی ریڑھی پہ۔ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تو مجھے یاد ہے، پتہ چلا کہ ایک پورا کوٹھا، یعنی ایک پورا کمرہ جلیبی، سیب اور لڈو سے بنا کے بھر دیا کہ شریک برادری آئے گی اور وہ آ کے کھائے گی۔ میٹھے کا ذوق عموماً ختم ہو گیا، ہم نمکین کی طرف چل پڑے ہیں۔ آج سے 20 30 40 سال پہلے نمکین کا کم تھا، میٹھے کا زیادہ تھا۔ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ میٹھا اب بھی بنتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے ہمارے والد صاحب کی دکان تھی انارکلی، لاہور میں، انارکلی میں، تو وہاں ایک دکان ہوتی تھی، وہ دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ تو ہم نے کہا بھائی کوئی گاہک نہیں ہوتا، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اس دور کی بات ہے جب دکانیں جلدی بند ہو جاتی تھی، آپ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ کہا ہمارے پاس مٹھائی لینے والے جنات بہت آتے ہیں، انسانی شکل میں، جس شکل میں، بہت آتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بھائی نظام الدین صاحب تھے، نظام الدین، شریف آدمی، سفید پوش آدمی تھے، بہت سارے بچے تھے، اور ان کو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی نظام الدین، مٹھائی
इंसान खाते हैं, जिन्नात भी खाते हैं। कह रहे बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं। मैं कहा, आपको कैसे यकीन है कि जिन्नात भी मिठाई खाते हैं? आपको कैसे एहसास है कि जिन्नात भी मिठाई खाते हैं? तो मुझसे कहने लगे हमें लेने वाला पता चल जाता है कि वो ये लेने वाला वो कौन है, इंसान है या जिन है, हमें लेने वाले का पता चल जाता है। दूसरी चीज कुरान पाक है, ज़ौक़ ही खत्म हो गया। कुरान और अखबार में फर्क है, कुरान और अबकरी मैगजीन में फर्क है। अबकरी मैगजीन ने हर महीने आना है, नए का इंतजार। अखबार ने रोज आने हैं, नए का इंतजार। क्या कुरान ने भी नया रोज आना है? खत्म नबूवत के सदके वही के दरवाजे बंद हो गए, तो कुरान वही है जो मेरे आका के पास था और क़यामत तक वही रहेगा। अच्छा, फिर पढ़ने का ज़ौक़ खत्म हो गया। रही सही कसर मोबाइल और नेट की दुनिया ने कुरान से दूर कर दिया, लेकिन धड़ाधड़ मशीनें हैं, वो लाहौर की प्रेस है या दूसरे शहरों की, कुरान छाप रहे हैं। ये कहाँ छापते हैं? जिन्नात बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इतना ज्यादा जिन्नात कुरान पढ़ते हैं, इतना ज्यादा कि हमारे गुमान ख्याल और हमारी सोच से बालातर है, हमारी सोच से बालातर है कि इतना ज्यादा ये हजरात कुरान पाक पढ़ते हैं और इनके यहाँ इतना ज्यादा कुरान पाक पढ़ने का ज़ौक़ होता है। हमारे मदारिस में जिन्नात के बच्चे बहुत कुरान पढ़ते हैं। हमारे बुजुर्गों की खानकाहों में, आस्थानों में, दरगाहों में बहुत जिन्नात अल्लाह अल्लाह सीखने आते हैं, बहुत जिन। हजरत अफगानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब वो बहावलपुर में होते थे तो एक बंदा आया कि हजरत रात को बहुत बड़ा धमाका होता है मेरे घर में, परेशान हूँ, बच्चे चीखते हैं। और बड़े कई आमिल इधर उधर के आके दिखाया, कोई जादू जिन्नात को क्या कहते हैं। तो हजरत आप मेहरबानी करें, शफकत फरमाएं। अब हजरत ने क्या किया? अब सोना छोड़ के मेरी तरफ देखें और सोने वाली पोजीशन खत्म करें। पहले ये देखें, अब आजा तेरी मेहरबानी, ये खत्म करें। हजरत आखिरकार उनके घर जाके रात रहे तो फिर वही धमाका हुआ। हजरत धमाका फरमाया आखिरी हुआ है। वो बंदा जो है वो आके, मैं सोया हुआ था, मेरे पाँव दबाना शुरू हो गया। मैंने समझा सब घर वाले हैं, अहले खाना है। मैंने कहा कौन है? उन्होंने कहा हजरत जब आप दारुल उलूम पढ़ाते थे ना तो मैं आपका शागिर्द था, आज मेरे उस्ताद आए हैं यहाँ। तो मैंने कहा भाई यहाँ जिन करे मैं रहता हूँ और मैं तो हजरत इनका बहुत ख्याल रखता हूँ, एहतियात से दरवाजा बंद करके जाता हूँ कोई आए ना। और जिन का दरवाजा बंद करना वो धमाका हो गया। मैं अल्लाह का बंदा, तुझे ख्याल भी है, तू तो एहतियात करता है, और ये बेचारे तू यहाँ से अपना कहीं और शिरकत शिफ्ट हो जा। उसने कहा जैसे उस्ताद जी आप हुक्म फरमाए मैं वैसे करूंगा। फरमाया भाई आज इनका आखिरी जो है, इसकी आखिरी रात थी, ये यहाँ से चला जाएगा। ये हमारे पास पढ़ता था। हमारे यहाँ लाहौर के एक मुखलिस है, तो वो कहने लगे कि हम 60 लोग हैं, ये पढ़ते हैं। और पूछा तुम्हारी गिज़ा क्या है? क्या हमारी गिज़ा खुशबू है और हमारी और गिज़ाएं हैं। एक गिज़ा ये भी है, जब चावल को उबालते हैं तो चावल के उबालते हुए एक खुशबू उठती है। चावल पकाते हैं, उनको उबालते हैं और उसके पकाते हुए एक खुशबू उठती है, वो हमारी गिज़ा है। जिन्नात बहुत ज्यादा कुरान पाक पढ़ते हैं और जिन्नात रमजान की घड़ियों का बहुत एहतमाम करते हैं। सारे शरीफ नहीं है, शरीफ भी है। सारे बदकार नहीं है, नेक भी है। सारे बुरे नहीं है, वली भी है। और वली विलायत भी है तो इंतहा दर्जे की जिन्नात के यहाँ कुरान बहुत पढ़ते हैं। रमजान की आखिरी रातों का तो उनके यहाँ ऐसे एहतमाम होता है जैसे जश्न होता है, जश्न। वो जश्न रमजान की आखिरी रातों का मनाते हैं। इबादत, अमाल, जिक्र, तस्बीहात, अल्लाह की जात का तारुफ और ईद की रात और ईद के दिन। ये मैंने सुना है जिन लोगों का जिन्नात से ताल्लुक है, मेरी आपसे दरखास्त ये है कि आखिरी अशरा कैसे और ईद की रात कैसे। और फिर एक खास बात है, सारी कमाई कहीं ईद की रात के किसी मंसूबे, ईद की रात के किसी प्रोग्राम या ईद की रात के दोस्तों के मिल बैठने में ज़ाय ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से कमाई की जाती है और पल में ज़ाय हो जाती है, बड़ी मुश्किल से कमाई की जाती है। देखिए, दौलत कमाना मुश्किल, बचाना उससे बड़ा मुश्किल। दौलत कमाना मुश्किल, बचाना उससे बड़ा मुश्किल है कि दौलत को बचाना कैसे है और दौलत को आगे बढ़ के बचाने की कैफियत कैसे है। दौलत को बचाना कैसे है? रमजान की घड़ियां दौलत को बचाने की है।
ईद उल फित्र का दिन कैसे? फिर अल्लाह ने अगर तौफीक दी है, फितराना कौन सा? गंदम वाला, किशमिश वाला, पनीर वाला, खजूर वाला, कौन सा फितराना देना है? गंदम वाला फितराना 200-250-300 में गुजारा हो जाएगा, वो भी फितराना है। पर ऐसा फितराना, आला किस्म की खजूर कितने की किलो, आला किस्म की किशमिश कितने की किलो? अल्लाह वालो, ये चीज भी फितराने में है। आला किस्म की जूती, आला किस्म का मोबाइल, दुनिया में अखराजात, पोते बेटे और अपने के लाड पूरे करना, और वहां खर्च करते हुए हाथ नहीं थरकता। फितराना देते हुए हम खुद मुस्तहिक बन जाते हैं कि हमें दे जा सकिया राह खुदा, तेरा अल्लाह ही बूटा चावेगा। कहने लगे तू हमें खुद ही दे दे, खुद ही हमें दे दे। खुद मुस्तहिक बन जाते हैं। अल फुकरा वल मुहाजिरीन वल्लाह, हमारे एक थे लाला उबैद, अल्लाह जन्नत अता फरमाए, कहते हैं फितराना देते हुए कहते हैं अल फुकरा वल मुहाजिरीन वल्लाह यल्लाह, फिर झोली करके कहते हैं डल्ला। वो अपनी अरबी बोलते थे, झोली करके ना फिर ऐसे करते थे, अल फुकरा वल मुहाजिरीन यल्लाह वल्लाह डल्ला, फिर ऐसे झोली करके जेब में ऐसे हाथ डाल के जेब पर कहते थे अदुआ लाजिम माशाअल्लाह यल्लाह। फिर कहते जा अब जेब मेरी भर गई है। फकीर बन जाते हैं फितराने में, ज़कात देने में हम फकीर बन जाते नहीं। यहाँ अपनी ब्रांड, अपनी चीजें, अपने शौक और अपनी जिंदगी की तरतीब में हम कितना माल और दौलत की तरफ मुतवज्जे होते हैं, या चीजें हमें शौक से कितने उसमें माल दौलत खर्च करते हैं, जूती पे, कपड़े पे, चीजों अल्लाह को देने में, जिसके वादे के हैं मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को लौटा कर दूंगा, तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को लौटा कर दूंगा। और एक नहीं 70, और 70 से मुराद बेशुमार लौटा के दूंगा। जो जिम्मेदार उशर देता है, तौल के देता है, पूरा देता है, गिन के देता है, उलमा से पूछ के देता है, ये जमीन मेरी बारानी है, ट्यूबवेल पे मैंने फसल पकाई है, नहर पे पकाई है, या बारिश में मेरी फसल पकी है, हर के मसले इलादा है। अगर जो उशर देता है, अल्लाह उसकी जमीनों, अल्लाह उसके रकबे, अल्लाह उसके माल को कम नहीं करता, वो करीम बढ़ाता है। जो ताजर ज़कात पूरी देता है, गिन के देता है और झुकती देता है, अल्लाह उसके नुकसान। जिंदगी में अजब निज़ाम है। सुनो फिर, शेख अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बुजुर्ग थे, उन्होंने लिखा कि एक बंदे ने आके बताया कि वो सर्दियों की रात थी, एक बंदे ने दीवार तोड़ी, दीवार निकाल के आया और एक छोटी सी अलमारी थी और उसमें आना डेढ़ आने की ताली लगी हुई थी, ताला नहीं ताली छोटे सी लगी हुई थी, और लोग उस बंदे के घर अमानतें रखवाते थे और उसके घर बहुत माल पड़ा था। वो चोर ठक जो कोई ना, इसने रजाई से देखा तो बाबा समझ गया, कहने लगे भैया मैंने इस सारे माल की ज़कात दी है, जो तोड़ना है तो तोड़ ले। चोर भी को भी आ जाता। पता चल गया कि मालिक जाग गया है, और फिर भी ताला तोड़ता रहा, सुबह तक तोड़ता रहा, उससे ताला नहीं टूटा, ऊपर के ताले लगे हुए थे, ताला नहीं टूटा। और सुबह उठ के पाँव पड़ गया, कहने लगा राज बता दे। कहा सारे माल की ज़कात देता हूं। दिल्ली में बंगले बड़े बड़े अंग्रेजों के आग लगी, और आग इतनी लगी कि बंगलों की तरफ हवा उस तरफ थी, हवा ने आग को फैलाया। एक भागम भाग अंग्रेज का बहुत बड़ा बंगला था, अंग्रेज की तरफ मुसलमान मुलाजिम था, उसका घर का चौकीदार भागा हुआ आया कि साहब जी आग फैल गई, और आग आ गई और आग खा गई। और चुप करके लिखता रहा अपने दफ्तर के कामों को। उसने फिर आके कहा कि आग खा गई, पहुंचने वाली है, कुछ कर लो। उसने तवज्जो नहीं की। फिर जब उसने आखिरी कहा ना, तो अब जरा सुने गौर से, मेरी तरफ देखे। पता अंग्रेज ने क्या कहा? उसने कहा जा कुछ नहीं आग होता, मैंने मुसलमानों के तरीके पे अपने माल की पूरी ज़कात दी हुई है, मैंने मुसलमानों के तरीके पे अपने माल की पूरी ज़कात दी हुई है, कोई आग नहीं खाती। वो भागा हुआ फिर गया, देखा आग उस बंगले से पीछे बुझ गई, उस बंगले अंग्रेज के बंगले की तरफ आग नहीं आई। रमजान का महीना खैर खाही का महीना, रमजान की रातें अल्लाह को मनाने की रातें, रमजान का महीना हलाल और हराम की पहचान है। कई लोग देखे जो रमजान में ज़कात, उश्र, सदकात, खैरात लेते हैं, खुद देने वाले होते हैं, उसके नुकसानात होते हैं, नस्लों में खून रेजी, कत्ल गारत, बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलात, परेशानियां, और नस्लें पता नहीं किन किन इल्लतों में लग जाती हैं, और फिर कुदरत के इंतकाम टूटते हैं, कुदरत के इंतकाम टूटते हैं, और कुदरत के इंतकाम टूटते हैं। ये तो रमजान में देने वाले थे, ये खुद ही लेने वाले बन गए, खुद ही लेने वाले बन गए। तो मेरी दरखास्त है, रमजान की जिलहज्जा की पहली 10 रातें और रमजान की आखिरी 10 रातें बड़ी एहतियात की हैं, क्योंकि लुटेरा यहाँ लूटने की कोशिश करेगा। नेकियां, इबादत, अमाल, जिक्र, तस्बीहात आपने मुजाहिदे किए, आपने रोजे रखे, यहाँ अब सारी चीजें करके अब लुटेरा कहेगा एक पल में सब कुछ लूट के चला जाऊं। और लूटने के बहाने मैंने आपको बताए हैं, ईद की रात, चांद की रात, ईद के दिन, या फिर लूटने के ये बहाने हैं कि उशर में, ज़कात में, सदकात, खैरात में हम मिजाज
आज क्या रखते हैं दुनिया की खरीदारियों में, अपने बच्चों के शौक, बीवी के शौक और अपने शौक पूरे करने में कितना माल खर्च करते हैं, और अल्लाह को देने में हम खुद बखील या फकीर बन जाते हैं। इसे जिंदगी का सबक है। मेरे लिए पहले है कि मेरी जुबान मेरे कानों के ज्यादा करीब है। हम सब के लिए है कि अगर रमजान की आखिरी 10 रातों पे मेहनत ना की, आखिरी 10 रातों की कोशिश ना की, आखिरी 10 रातों में एहतियात ना की, और आखिरी 10 रातों के अंदर अल्लाह, जिंदगी पर पछतावा रहेगा, और ये पछतावा फिर खत्म ना हो गया। और फरमाया क़यामत के दिन ऐसे मुंह में या हसरत कहेगा और पूरा बाजू चबा जाएगा, इसको पता नहीं चलेगा। आज मौका है अल-यौम, आज मौका है अल-यौम, आज का दिन है बस। और इंशाअल्लाह आप खुशकिस्मत मजमा है, और पूरी दुनिया में जहां मेरी आवाज जा रही, खुशकिस्मत लोग हैं जो रमजान की सातों को, जो रमजान की रातों को, जो रमजान की घड़ियों को, जो रमजान के लम्हों को, जो रमजान के दिन रात को मुबारक बना रहे हैं, सआदतमंद बना रहे हैं, बाबरकत बना रहे हैं, और फैसले कर चुके हैं कि अगर आज तक ज़कात नहीं दी, ज़कात पूरी देंगे। आज तक उशर अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, जेब मजबूत है, तो इंशाअल्लाह हम उशर किशमिश का या किस चीज का देंगे। बल्कि मैं अपने अहबाब से कहूंगा कहीं लिख के लगा दें, पोस्ट तो हर बंदा नहीं पढ़ता ना मोबाइल के अलावा, लो प्रिंट निकाल के लिख के लगा दें, पनीर की क्या उशर है, खजूर क्या क्या उशर है, और गंदम का क्या उशर है, फितराना, जज़ाकल्लाह भूल गया, ये क्या है खजूर की शक्ल में और पनीर की शक्ल में और गंदम की शक्ल में, ये क्या है जो जितने भी मेरे कमली वाले ने, मेरे आका ने फरमाए हैं। इंशाअल्लाह करेंगे, अल्लाह बरकतें लौटा कर देता है, अल्लाह माल की शक्लें लौटा कर देता है, अल्लाह रिज़्क़ की शक्लें लौटा कर देता है, बेटों, नेमतों, इज्जतों, वकार, शान और शौकत की शक्ल में। हर साल यहाँ लिख के लगाया करें। आज अगर मैं भूल गया हूं तो आप में से सारे जिम्मेदार हजरात यहाँ लिख के लगाया करें। पोस्टें हर बंदा नहीं पढ़ता, यहाँ लिख के लगाते। गलती मेरी है कि हम पहले रमजान से लिख के लगाते। अल्लाह ने आज दिल में डाल दी मेरी ये बात, तो ये लिख के लगाएं और इसमें पूरी तवज्जो करें और इसमें पूरा ध्यान दें। ये छोटा सा अमल लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत कामयाबी का अमल है। ये छोटा सा अमल है लेकिन हमें इंशाअल्लाह बहुत रिस्क, दौलत, इज्जत और बरकत, सेहत, खुशियां, खुशहालियां और कामयाबियां अल्लाह के खजानों से दिलवाएगा। और इंशाअल्लाह इस अमल की अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा कीमत है, बहुत ज्यादा कीमत है। मुझे एक मैं सेमिनार में था, फ्लैटीज यहाँ लाहौर होटल है, उसमें था कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इस्लाम का जो है मुआशी निज़ाम क्या है। वहाँ एक स्कॉलर ने एक बात कही, कहा कि रिसर्च कहती है कि जमीन जो है, मकान, जमीन, कोठी, बंगला, आपके मुरब्बे जमीनें, ये तीसरी नस्ल में नहीं रहती, तीसरी नस्ल में नहीं रहती, और अगर रहती हैं तो हजारों में से कोई कम वाकयात है। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, अगर उशर पूरा दिया जाए, ज़कात पूरी दी जाए और सदकात दिए जाए, 7 14 नस्लों में रब दे देता है। और बरकतों के दरवाजे भी और वो नेमतें भी अल्लाह नस्लों में दे देता है। अगर अल्लाह को दिया जाए, अल्लाह लौटा देता है। क्या कर देता है? कुछ अहम बातें हैं जो आपकी खिदमत में, बच्चों की फरियाद मुसलसल कर रहा हूँ। खवातीन और मर्द हजरात बच्चे लाए हैं लेकिन उनका कोई ख्याल नहीं है। हादसात बहुत, अगवा बहुत हो रहे हैं, उनका कोई ख्याल, उन पर तवज्जो नहीं है। और दूसरी, आज इंशाअल्लाह खत्म कुरान है। एक दूसरा बरकत वाली थैली पर अमल कराया जाएगा। तीसरा बरकत वाली थैली पर 1100 मरतबा सूरत कौसर पढ़ने का इनफिरादी अमल है, ये याद दहानी है, हर साल होता है। चौथा सूरत रहमान और नीले धागे का अमल मैं खुद बैठ के कराऊंगा। और पांचवा जो हरूफ तहज्जी का नक्श है, इसकी अलविदाई दुआ होगी जो आपने पुर किया, मटकों में डाला, और उनके मटके सामने रखकर, उनके मटके ये सामने रखकर, या मटकों के तावीज जो हैं वो सामने रखकर उन पर जो है वो अमल होगा और उनके लिए दुआ होगी। ये भी अमल है बहुत अहम। खिजरी तावीज तकसीम होगा, तस्बीह के दाने तकसीम होंगे, और उसमें एक से ज्यादा भी आप ले सकते हैं। जितने पैकेट्स हैं आप एक से ज्यादा ले सकते हैं। मैंने इनसे अर्ज किया है, ये सारा विरसा इस मजमे का है, ये सारा सरमाया इसी मजमे का है। रख दो सारा जितना भी है, जो एक पैकेट ले, 2 ले, जिना दा लगे चावल। और उसके बाद 4 रंग की ताकतवर तावीज मैं खुद बैठ के करवाऊंगा अपने। आज इंशाल्लाह पूरे कुरान का तावीज होगा और बादामों वाले दूध की सबील इंशाल्लाह इफ्तारी से रात तक होगी। और मटकों वाला अमल आपने लिखने में भूल गए, ये अमल भी जो हमारे नक्श हैं, ये नक्श मेरे सामने होंगे, इनको भी दुआ की जाएगी। ये आज की इंशाल्लाह हमारी तरतीब है और आज का हमारा ये सिलसिला है। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। बाकी ऐलानात वही, दरखास्तें वही हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ। लेकिन अब आज के बाद आप ये बताएं कि आपने क्या सोचा इसके लिए, आखिरी अशरे के लिए। बोले क्या सोचा, क्या सोचा आखिरी अशरे के लिए?
ایک اعلان ہے، بہت اہم اعلان ہے. وہ اعلان یہ ہے کہ یہاں جو خدمت کرنے والے ہیں، مختلف شعبوں کی خدمت کرنے والے، اگر وہ 40 یا 70 اصلاح و تجاویز اگر وہ لکھ کر دے دیں، صاف صاف لکھ کر دے دیں کاپی پر، کاغذ پر، تو وہ بھی ان دعاؤں میں شامل ہوں گے جو دعائیں آخری عشرے کی ہیں، اور عید کی رات تک، چاند رات تک اور عید کی نماز تک جو دعائیں ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. آپ خدمت میں رہے، آپ نے کوئی یہاں دیکھا کہ یہاں یہ اصلاح، یہاں یہ تجاویز ہونی چاہیے، آپ صاف صاف اپنے کاغذ پہ لکھیں، جتنا زیادہ لکھیں، ایک ایک چیز کی پوری وضاحت، اپنا نام نمبر لکھیں، اور اس کے بعد وہ کاغذ استقبالیہ پر پکڑا دیں. بھائی ان کو بٹھا دو، بھائی استقبالیہ پر پکڑا دیں. تو یہ آپ لکھیں، کہیں اصلاح ہے، کہیں تجاویز ہے، کہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے، آپ لکھیں، وضاحت سے لکھیں، کھل کے لکھیں، خواتین بھی اور مرد بھی. تو وہ تجاویز پہنچا دیں، وہ میرے سامنے لائی جائیں گی، ان کو سامنے رکھ کے دعائیں ہوتی ہیں. ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ. لوگوں سے کہتے تھے فقیروں اپنے کاغذ اٹھا کے میرے سامنے کر دو، اور کاغذ پہ بھی توجہات دیتے تھے اور پھر دعا بھی کرتے تھے. اور لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ پیر صاحب کے سامنے کاغذ چلا گیا ہے تو ہماری مراد پوری ہو گئی ہے. تو آپ اپنے مشاہدات، تجربات لکھیں. اور آج سیاہی اور پین بھی مل جائیں گے انشاءاللہ، سیاہی اور پین بھی ملیں گے جس کے ذریعے سے ہم نے نقش لکھنا ہے، قرآنی پورا نقش لکھنا ہے. اور آپ اپنے مشاہدے لکھیں، تجربے، کسی تعویذ نقش کا فائدہ وہ بھی لکھیں، اور ساتھ جو ہے یہ اصلاح و تجاویز روزانہ لکھیں اور یہاں پہنچائیں. انشاءاللہ ہم سب ہر وقت اصلاح کے محتاج ہیں، میں خود ہر وقت اصلاح کا محتاج ہوں. ضرور لکھیں. اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اللہ کے نام سے بندش توڑ لاہوتی عمل پوری توجہ دل کی گہرائیوں سے اندر کے در سے کریں گے. اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کا. اللہ کا ذکر ہوگا، سلطان الاذکار اسم اعظم ہوگا، مراقبہ اور پھر دعا ہوگی. ان چیزوں کو ضرور سامنے رکھیے گا. اللہ کے ذکر کو جتنی زیادہ توجہ، جتنا زیادہ جو ہے، جتنی زیادہ توجہ اور جتنی زیادہ توجہ اور دھیان ہوگا اللہ کے نام کو، اللہ کے دھیان سے، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ. اللہ اللہ.
اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. ظلمت نفسي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني 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 إنك أنت الغفور الرحيم. آمين 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 برحمتك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحری کا انمول تحفہ. لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت. 7 مرتبہ پڑھیں. فضیلت: جو شخص اس دعا کو وقت سحری 7 مرتبہ پڑھے گا اس کو ہر ستارے کے بدلے میں 1000 نیکیاں ملیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اتنے ہی درجے بلند کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.